नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के रंग मंदिर में सोलार रूफटॉप टेक्नोलॉजी जागृति कार्यक्रम संपन्न। चिंतन शिविर के बाद कर्नाटक कांग्रेस ने भाजपा द्वारा लक्षित लोगों के मुद्दों को उठाने का संकल्प लिया। कर्नाटक में 222 नए कोविड-19 मामले दर्ज, 0 मौतें। आरएसएस के संस्थापक पर पाठ को पाठ्य पुस्तक से नहीं हटाया जाएगा, बोम्मई ने कहा। भारत ने हासिल किया पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य, पीएम मोदी। बीजेपी सभी धर्मों का करती है सम्मान, प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादास्पद बयान से पार्टी ने किया किनारा। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर के रंग मंदिर में सोलार रूफटॉप टेक्नोलॉजी जागृति कार्यक्रम के तरह घर के ऊपर सोलार के सुपर कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने किया और कहा, भारत 2030 तक 500 गीगावाट विस्तार करेगा। इससे देश में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। लोग विभिन्न कंपनियों के सोलार का उपयोग अपने घरों के लिए कर सकते हैं। आने वाले दिनों में बीदर के हर घर पर सोलार होगा। इस अवसर पर कन्नड़ा, संस्कृत और ऊर्जा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य के 9 जिलों में सर्वे किया जा चुका है। जल्द ही ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक रहीम खान, रॉय इंडस्ट्री डेवलपमेंट निगम के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, बूढ़ा अध्यक्ष बाबू वाली, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, एसपी किशोर बाबू, सीएस जाहिरा नसीम, पूर्व विधायक प्रकाश खंडरे सहित अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम से पहले रंग मंदिर परिसर में विभिन्न कंपनियों के सोलार स्टॉल्स को भी नेताओं और प्रशासन ने देखा। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ರೂಫ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಹೊಂದಿದೆ। ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ದೇಶದ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। 2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ 50% ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಂದನೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಆ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಸರದ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 5000 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಮುಖಾಂತರವೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಶಯ। ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಸೋಲಾರ್ನ ಮುಖಾಂತರವೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕರೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೂಫ್ಟಾಪ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ। ಅದರ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರವಾದಂತಹ ಕುರಿತಂತ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇವೆ। ನಾವು ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಗುರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಮಾತುಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ। ಅವರ ಮಾಡುವಂತ ಯೋಚನೆ, ಅವರ ಕೊಡುವಂತ ಗುರಿ, ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಭಾರತೀಯರು 2022ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 175 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾನ್ಯ COP26ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬರುವಂತ 2030ರವರೆಗೆ 500 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ನಾನ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲಿ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸು ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ
ಸೋಲಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೈಡ್ರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ 500 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ವರೆಗೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಗುರಿಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರ ಎದುರುಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಭಾರತ 2030ರವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಇವತ್ತು ಕಾಲವನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 2070ರವರೆಗೆ 0 ಎಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಗುರಿಯನ್ನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ 2070ರವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು 0% ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಗುರಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಆದರೂ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಇಡೀ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಜನರಿಂದ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸುನೀಲ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆದರೂ फर्स्ट हम सब राजनेता बड़े लोग फर्स्ट करना चाहिए. छोटे लोगों पे बोलने से ज़्यादा ये सिस्टम को हम पे पहले लागू होता है. तो मैं भी ज़रूर कोशिश करके जल्द से जल्द मेरे घर पे भी सोलर एनर्जी का सिस्टम मैं फॉलो करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा. यहाँ पे बीदर डिस्ट्रिक्ट में, छोटे से डिस्ट्रिक्ट में ये काम चालू किए हैं. तो हमारे बीदर सभी वासियों का आपको सपोर्ट है और हम सब मिलके इसको जितना हो सके जागरूकता लाने की कोशिश करेंगे. और बीदर आपको मालूम है हर तरीके से ये 8-10 साल में बहुत ही अच्छा डेवलप हुआ है. बीदर के लोगों के लिए वन ऑफ दी अच्छे लीडर्स मिले हैं, क्योंकि बीदर में सबसे पहले हम यहाँ पे सभी लोगों को शांति, पीसफुल रहना. जब तक हम शांति नहीं है, पीसफुल नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा जात पात, ये चीज़ों में हम बहुत कंट्रोल किए हैं. मैं रहते, खोपा साहब रहते, सभी लीडर. यहाँ पे कोई बदमाश लोग नहीं रहना, गुंडाइज्म नहीं रहना, यहाँ पे अच्छे लोग रहना, कोई जात पात का नाम नहीं लेना. तो इसलिए हम सभी का दिल जीतने की कोशिश किए हैं. हम सबको आप दुआएं करें, हम सबको मदद करें. इतना बोलते हुए मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सोलर रूफटॉप अपने देश के लिए एक बड़ी क्रांति होने वाली है. सोलर रूफटॉप इज अ गेम चेंजर, क्योंकि जो बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी थर्मल प्लांट से अपने पास आती है ना, वो बहुत ही इनएफिशिएंट है. वो कैसे है कि कोल माइनिंग से लेके जो एनर्जी जाती है, फिर आप वैगन से ट्रांसपोर्ट करते हो, फिर थर्मल प्लांट में लाके उसको बॉयलर में डाल के सब एफिशिएंसी कम होती जाती है. कि स्टीम बनाई, स्टीम के अंदर से आपने टरबाइन चलाया, बहुत ही मुश्किल चीज़ है. उसमें कितनी एफिशिएंसी लॉस होती है. टरबाइन से रोटर जो इतनी बड़ी लैक्स ऑफ आरपीएम में चलता है, वो चलाने के लिए आपने ऊर्जा का खर्चा किया. उसके बाद में रोटर से बस बार पे आए और बस बार पे एनर्जी जनरेट हुई, और उसके बाद में वेरियस ट्रांसफॉर्मर्स के बाद इधर अपने पास आई. तो केवल 5 या 7% बिजली बार आती है. 4 साल से मैंने 1 रुपया बिजली का नहीं दिया. और जो आपका जेस्कॉम है ना, ऐसा हमारे जो है, उसके पास से मेरे को 25,000 रुपया मेरे को लेना है. कांग्रेस पार्टी की कर्नाटका इकाई ने फैसला किया है कि वह उन समुदायों के मुद्दों को उठाएगी जिनमें मुस्लिम और ईसाई शामिल हैं, जो राज्य में भाजपा सरकार की नीतियों से आहत हुए हैं. 2023 में कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए 2 दिवसीय अभ्यास के बाद राज्य कांग्रेस प्रमुख DK शिवकुमार ने घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लक्षित समुदायों से संबंधित मुद्दों पर बात करेगी.
शिव कुमार ने 2 दिवसीय कांग्रेस के अंत में कहा, हम उन संवैधानिक मूल्यों और समुदायों के लिए खड़े होंगे जो इस भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से आहत हुए हैं, खासकर मुसलमानों और ईसाइयों के लिए जिन पर लगातार फर्जी मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि कर्नाटक ने शनिवार को 222 ताजा कोविड-19 मामले दर्ज किए, जिसमें कुल संक्रमण दर 39,35,058 हो गया। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से एक भी मौत नहीं हुई है। संक्रमण में बेंगलुरु शहरी जिले में 210, उडुपी में 4 और चित्रदुर्ग में 2 शामिल है। राज्य के 22 जिलों में 0 संक्रमण और मृत्यु दर। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 191 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिससे अब तक कुल ठीक होने वालों की संख्या 39,10,691 हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या 2,260 है। सकारात्मकता दर 0.93%। राजाजी नगर पुलिस ने साइट बेचने के बहाने निवेशकों से एडवांस पैसे लेने के आरोप में एक फिल्म निर्माता और एक व्यवसायी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। नेलामंगला के पास सुभाष नगर निवासी पुष्पक कुमार की शिकायत के आधार पर फिल्म निर्माता मंजुनाथ टीके और उनके दोस्तों के शिव कुमार, चंद्रशेखर और गोपाल शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। कुमार ने अपनी पुलिस शिकायत में कहा कि आरोपी ने ईगल ट्री बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी खोली थी और ऑनलाइन संपत्ति पोर्टल में बिक्री पर साइटों के बारे में विज्ञापन दिया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्पष्ट किया कि आरएसएस के संस्थापक केबी हेगड़ेवार पर पाठ को स्कूली पाठ्य पुस्तकों से नहीं हटाया जाएगा और सवाल किया इसमें क्या गलत है। जिले के हिरियूर तालुका के देवरकोटा गांव में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, रोहित चक्रतीर्थ की अध्यक्षता वाली स्कूल पाठ्य पुस्तक पुनरीक्षण समिति को भंग कर दिया गया है क्योंकि काम खत्म हो गया है, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया गया है, इसलिए नई समिति के लिए कोई नहीं है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920।
जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल स्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों को बताया कि आज भारत ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। यह सफलता देश के निर्धारित समय से 5 महीने पहले ही हासिल किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अपने अथक प्रयासों के बाद
इस सफलता को हासिल किया है। इसके लिए भारत के लोगों को गर्व महसूस करना चाहिए। पीएमओ इंडिया ने इसके बारे में बकायदा एक ट्वीट कर देश के लोगों को इस उपलब्धि के बारे में जानकारी दी है। वहीं पीएम ने देश के लोगों को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि यह उपलब्धि कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2014 में भारत में सिर्फ 1.5% इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। इस लक्ष्य पर पहुंचने की वजह से भारत को आज सीधे 3 तरह के फायदे हुए हैं। बीजेपी ने पार्टी प्रवक्ता नुपुर सिन्हा के बयान के बाद जारी विवाद के बीच उनसे दूरी बना ली है। अंग्रेजी टीवी चैनल पर डिबेट शो के दौरान पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए बयान के बाद पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है। साथ ही ये स्पष्ट किया है कि वो धार्मिक एकता में विश्वास रखती हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिन्हा ने कहा, बीजेपी किसी भी धर्म के पूजनियों का अपमान स्वीकार नहीं करती है। किसी भी धर्म संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला विचार स्वीकृत नहीं है। मुख्यालय प्रभारी की ओर से रविवार को जारी पत्र में कहा गया, भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में प्रत्येक धर्म फला फूला है। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। भाजपा किसी भी धर्म के किसी भी धार्मिक व्यक्ति के अपमान की कड़ी निंदा करती है। पार्टी किसी भी विचारधारा के सख्त खिलाफ है जो किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है। बीजेपी ऐसे किसी विचारधारा का प्रचार नहीं करती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर में 1990 का दौरा फिर से लौट आया है। केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों की जान बचाने में नाकाम साबित हो रही है। कश्मीरी पंडित पलायन करने के लिए मजबूर हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आज कश्मीरी पंडितों की हत्या से पूरा देश दुखी है। केजरीवाल ने कश्मीर में मारे गए नागरिकों और शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज कश्मीरी पंडित पलायन करने को मजबूर है क्योंकि डर के साए में हैं और बीजेपी सरकार से अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है। आज कश्मीर में 1990 का दौर फिर से आ गया है। बांग्लादेश के चटगांव के सीताकुंडा उपजिला में शनिवार रात एक निजी कंटेनर डिपो में भीषण आग लग गई, जिसमें अब तक 35 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 450 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार उपजिला के कदम रासूल इलाके में बीएम कंटेनर डिपो में आग लग गई। इस संबंध में चटगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एसआई नूरुल आलम ने कहा कि घटना की प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि कंटेनर डिपो में केमिकल के कारण आग लगी है। उनकी माने तो आग बुझाने के क्रम में एक भयानक विस्फोट हुआ। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार विस्फोट के बाद आग और भयावह हो गया। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। हंसाएगी, दिमाग की बत्ती जलाएगी और फिर आंखें नम कर जाएगी। पंचायत 2। अब देखते हैं समाचार खेल जगत के। T20 वर्ल्ड कप 2022 में इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले शोएब अख्तर ने भारत को किया आगाह, ऐसी गलती अब मत करना। आखिर में समाचार बाजार के। स्टाफ की सैलरी बढ़ानी है तो ग्राहकों पर नहीं बढ़ा सकते बिल का बोझ, केंद्रीय मंत्री ने कहा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के रंग मंदिर में सोलार रूफटॉप टेक्नोलॉजी जागृति कार्यक्रम संपन्न। चिंतन शिविर के बाद कर्नाटक कांग्रेस ने भाजपा द्वारा लक्षित लोगों के मुद्दों को उठाने का संकल्प लिया। कर्नाटक में 222 नए कोविड-19 मामले दर्ज, 0 मौतें। आरएसएस के संस्थापक पर पाठ को पाठ्य पुस्तक से नहीं हटाया जाएगा, बोम्मई ने कहा। भारत ने हासिल किया पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य, पीएम मोदी। बीजेपी सभी धर्मों का करती है सम्मान, प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादास्पद बयान से पार्टी ने किया किनारा। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।